Done. Thank you, Shiva. दो मिनट वेट करते बेटा। तो कैसे चलिए गुड इवनिंग everybody, online offline. Let's start. Yesterday I think we were on datas, the last term discussed. Let's do a quick revision of what we have done yesterday. Now you can see a fresh screen here apart from yesterday's lecture, isn't it? So accounting is something which is very widespread into the society. Accounting पूरे society में widespread है, and who's not doing accounting? Everybody is doing accounting. So here you can see an example of Sinhagad Trek. So contribution received is total 16,080 students, 200 each, और बाद में उसका खर्चा हमने यहाँ पे बताया है जो आप देख सकते हैं. This is nothing but accounting students, यही accounting है. और आखिरी में बचा कितना, तो आपने क्या क्या खर्च किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर Sinhagad Fort, second is breakfast and lunch, then first aid, along with that miscellaneous expenses. Total खर्च किया आपने कितना? 14,500. So that is what given there. Total आपके पास आया 16,000 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. So out of this 16,000 you have spent 14,500. 14,500 आपने spend किया, 16,500 आपके पास आया था. So how much is remaining at the end of the day is nothing but 1,500. ये सारा ट्रेक खत्म करने के बाद आपके पास 1,500 रुपए बचे. दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज नथिंग बट सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. वैसे अकाउंटिंग के पहले एक चीज आती है बेटा, ये जो हमने किया ये अकाउंटिंग नहीं है. हमने जो किया इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. इसको क्या बुलाते हैं? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मतलब क्या है? Bookkeeping is nothing but the art of systematically recording the transaction in the books of accounts. आप देख सकते हैं कि लेमैन भी ये करेगा. आपके पास जेब में 16,000 रुपए है और आपने अलग अलग खर्चा किया और उसको जॉट डाउन करके लिख दिया. सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड लंच, फिर फर्स्ट एड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. टोटल खर्चा आपने कितना किया स्टूडेंट्स? 14,500. अब 16 माइनस 14,500 आपके पास बचा कितना? क्लोजिंग बैलेंस इज 1,500. So do remember this is called as bookkeeping. वैसे bookkeeping क्या होता है आपके लिए लिख दूं मैं यहाँ पे. Bookkeeping is nothing but the art of systematically recording the transaction in the books of accounts. The art of systematic record or recording transactions
in the books of account. Transactions in the books of accounts. So bookkeeping is nothing but the art of systematic recording transactions in the books of accounts is called as bookkeeping. हम bookkeeping इसको बुलाते हैं बेटा. Obviously bookkeeping का अगला लेवल क्या रहेगा, तो सीधी बात है कि अकाउंटिंग, क्योंकि हमें जानना है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास पैसे बचे या नहीं बचे. नहीं बचे तो घर वालों से और ले लो, घर से और मंगा लो, बैंक अकाउंट से निकाल लो, isn't it? All these are different ways. इवन आजकल कुछ फैसिलिटीज है, आप देखते हैं डिजिटल वॉलेट पे पे लैटर, पेटीएम पे है मेरे ख्याल से, द सेम इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन पे लैटर, उसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है. तो ये सारी चीजें हैं. ऑब्वियसली दैट आल्सो कैन बी यूज्ड अलोंग विद दिस. सो बुक कीपिंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, जैसे मैंने आपको बोला. Yesterday we have seen these definition. If you remember, let's have a quick recap. Capital is the initial amount with which business is started. It may be in the form of cash, or it may be in the form of bank balance, or it may be in the form of different assets. Further, we defined assets. Assets are economic resources which are owned and possessed and has a resale value in the market. Assets क्या है? तो economic resources है, और जो basically resale value possess करता है, and these are your asset. Your asset means your ownership and your possession. कल हमने जैसे देखा था कि आपका घर, आपकी कार, आपका लैपटॉप, आपका पेन is nothing but your asset. Assets के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. So assets के लिए मैंने 3 कंडीशन भी आपको बताई थी. Assets are economic resources which are owned and possessed and which has a resale value in the market. Cash in hand, cash at bank, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, inventory और stock, जिसमें 3 टाइप्स है यहाँ पे. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. उसके साथ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट. ये सारे आपके असेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एज वेल, एंड अलॉन्ग विद दैट इज डेटा. जैसे ही बात डेटर की आई तो हमने कल डेटर को भी एक्सप्लेन किया था, और डेटर को हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, which you have written as well. So debtors are nothing but the customers to whom goods are sold on credit basis and money is yet to be received from them in the future, maybe after a month, after 2 months, 3 months. क्योंकि आजकल बिजनेस बड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे किया जाता है. आप नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ कैश में बेचूंगा. ऐसा कोई बिजनेस है जो बोलेगा कि मैं सिर्फ कैश में बेचूंगा? हाँ, ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, आपने कभी देखा है कि आपने उस पर बुकिंग किया क्रेडिट पे, 2 महीने बाद पेमेंट देंगे इंडियन रेलवेज का? नहीं. तो ये ऐसे कुछ मोनोपोलीज है. दीज आर मोनोपोलीज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम. मोनोपोली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, खरीदना है तो उसी से है. क्या मार्केट में टाटा की रेलवे, अंबानी की रेलवे, इंडियन रेलवे है, सिर्फ रेलवे से जाना है तो चुपचाप उसी से जाओ, उसका बुकिंग करो, पेमेंट करो, तो वहां पे क्रेडिट की जरूरत नहीं है. अलॉन्ग विद दैट इवन पेट्रोल पंप्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोपोलीज. वहां पे भी ऐसा कुछ क्रेडिट नहीं चलता. तो आजकल बिजनेस कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और कैश और क्रेडिट ऐसे दोनों रास्ते यहाँ पे अवेलेबल है. तो परचेस एंड सेल्स, कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस. अगर आपने कैश में खरीदा तो आप कैश पे करेंगे, तो ये आपका क्या हुआ? पेमेंट हुआ, सीधी बात है. अगर आपने क्रेडिट में खरीदा तो आपने पैसे दिए क्या? नहीं. आपने खरीदा लेकिन पैसे आप देंगे फ्यूचर में, maybe after 15 days, after 2 months, 3 months, whatever has been agreed between the seller and the buyer, or you can say the supplier and your firm. वो हिसाब से कैश सेल्स इज कैश रिसीव्ड. जैसे ही आपने कैश में बेचा, सामने वाले ने पैसे दिए, आपने माल दिया, बात खत्म. लास्ट क्रेडिट सेल्स, that is called as debtors, which gives rise to an asset. Credit purchases give rise to a liability that you can see on the screen. अगर आप क्रेडिट में खरीदेंगे बेटा तो आपके लिए लायबिलिटी बनती है, और आप अगर क्रेडिट में बेचते तो आपके लिए क्या बनता है? असेट. सो क्रेडिट परचेसेस गिव राइज टू अ लायबिलिटी नेम्ड एज क्रेडिटर, एंड क्रेडिट सेल्स गिव राइज टू अ असेट नेम्ड एज डेटर. जैसे डेटर को हमने कल ही डिफाइन किया. डेटर्स आर नथिंग बट द पार्टीज और पर्सन टू हुम business has sold goods and services on credit basis and amount has not received yet. इनको हमने बेचा तो है लेकिन पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है, और इसको शॉर्ट टर्म असेट हम बुलाते हैं. कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट देखे थे, इफ यू रिमेंबर करेक्टली.
The first type of asset we have seen is tangible and intangible asset. मैंने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करके आपको बताया था, tangible assets and intangible asset. That is bifurcation of asset on the basis of, you can say that it is division of assets. Assets के division हो सकते हैं on the basis of what? सबसे पहला डिवीजन करते हैं हम on the basis of tangibility, जिसको हम बुलाएंगे tangibility means दिखने के हिसाब से, और इसका बाइफिकेशन क्या है? The bifurcation is very simple, that is tangible assets and intangible assets. तो ये हमने पहले देखा था. और tangible asset का मतलब क्या है? The assets which can be seen and touched are called as tangible assets, whereas intangible assets are nothing but the assets which cannot be seen and touched but which can be felt. जिनको आप महसूस कर सकते हैं उनको intangible asset बुलाते हैं, और जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको आप tangible asset बुलाते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है tangible में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर. इंटेंजिबल अगर जाएंगे तो एग्जांपल हमने लिखे थे कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल. गुडविल इज वैल्यू ऑफ मॉनिटरी रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. तो पहला डिवीजन हमने असेट का देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी. अब दूसरा डिवीजन देखते बेटा. सेकेंड डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दूसरा इसका बाइफिकेशन हम देखेंगे. एंड व्हाट इज द बाइफिकेशन देयर? On the basis of nature, the bifurcation is exactly what? The bifurcation is fixed asset or short-term asset or long fixed asset oblique long-term बोलना चाहिए मैंने यहाँ पे, sorry, fixed asset oblique long-term asset oblique, इसी को क्या बुलाते हैं बेटा हम? Capital asset. Fixed asset, long-term asset, कैपिटल असेट्स एंड, और एक नाम हमने दिया था इसको नॉन करंट असेट्स. तो ये नाम है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. और दूसरा क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स. दिस इज द लार्जर बाइफिकेशन एज फार एज असेट्स आर कंसर्न. एक तो टेंजिबल, इंटेंजिबल ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज आइदर लॉन्ग टर्म और short term assets. long term assets का सीधा साधा मतलब है स्टूडेंट्स, the assets which are purchased for use and not for resale purpose. जो asset आपने खरीदे हैं यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, ऑल दीज आर यूजुअली परचेस्ड फॉर यूज एंड नॉट फॉर रीसेल. तो इसको हम नॉन करंट असेट्स बुलाते हैं, और हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहते हैं. जबकि करंट असेट्स वी डिफाइंड एज the assets which are easily converted into cash within one accounting year, and these are nothing but cash in hand, cash at bank, stock or inventory, that is raw material, work in progress and finished goods. आइसक्रीम का बड़ा अच्छा एग्जांपल है. घर पे आइसक्रीम बनाना, घर पे चॉकलेट बनाना, इससे ये प्रोसेस समझी जा सकती है. बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेंट्री मतलब साइंस. नहीं, इन्वेंट्री मतलब कॉमर्स. बिना स्टॉक के बिजनेस होता ही नहीं है. स्टॉक है तो ही बिजनेस होता है. अब स्टॉक इमीडिएटली तो फिनिश स्टॉक नहीं रहेगा. आप चॉकलेट बनाएंगे घर पे तो पहले सारा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा. आइसक्रीम बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे तो सारा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा. फिर उसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए. ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर चॉकलेट बनेगा, आइसक्रीम बनेगा, कॉफी बनेगी थिक वाली, isn't it? And then you can enjoy it as finished goods. तो पहली स्टेज रॉ मटेरियल, जैसे कि इंग्रेडिएंट ऑफ आइसक्रीम इज मिल्क, शुगर, डिफरेंट फ्लेवर्स, all are mixed in a proportion and kept in a refrigerator to make it as ice cream. फिर वो बना WIP, that is work in progress, क्योंकि अभी तो ना रॉ मटेरियल रहा ना आइसक्रीम हुआ है. मे बी 1-2 घंटे के लिए वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा. 2 घंटे के बाद वो जम जाएगा, आइसक्रीम बनेगा. then you can call it as a finished goods. So it is raw material, work in progress and finished goods. So these are nothing but the examples of current assets. The assets which are easily converted into cash within one accounting year are called as current asset. इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है. अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटी हम बुलाते हैं, जहां पे आप शेयर, गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं.
एंड बेच सकते हैं. सो ऑब्वियसली दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज करंट असेट. और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक और इन्वेंट्री अलॉन्ग विथ डेटर्स. तो ये सारे एग्जाम्पल है बेटा. मैंने कोशिश की है हर चीज आपको समझाऊं. कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. कैश एट बैंक ऑलरेडी कैश है. स्टॉक यस आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन ये पहले रॉ मटेरियल है, फिर WIP है, फिर फिनिश गुड्स है, फिर आप इसको बेच सकते हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं अनदर एग्जांपल इज नथिंग बट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी. सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर करंट असेट्स देयर. एंड हियर वी आर डन विद द असेट्स बाइफर्केशन. देखा जाए तो ये देखिए असेट का बाइफर्केशन हमारा खत्म हुआ. पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिक्स्ड करंट असेट, लॉन्ग टर्म असेट्स और नॉन करंट असेट. दूसरा शॉर्ट टर्म असेट्स और करंट असेट्स. जस्ट आपके रेफरेंस के लिए फटाफट यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूं बेटा, ताकि मैटर पूरा क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना बचे. बोलते हैं ना कोई डाउट मत रखना दिमाग में, वरना मुश्किल हो जाएगा. बिना डाउट के जाएंगे तो बेटर रहेगा. चलिए पहले टेंजिबल असेट्स लिखते हैं. बताइए क्या क्या रहेगा टेंजिबल. टेंजिबल असेट्स आर कैश, देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड मोटर कार. सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे मैंने क्योंकि हमने कल ही देखा है इसको. तो कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश एट बैंक, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड मोटर कार ऑल आर नथिंग बट योर टेंजिबल असेट्स. इनको देख सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं. तो दैट इज हाउ दीज आर टेंजिबल. अब चलते हैं इंटेंजिबल के पास. इंटेंजिबल असेट्स क्या क्या है. इंटेंजिबल असेट्स आर एज डिस्कस्ड यस्टरडे, इट इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स. यही मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे बेटा सारा. पार्ले जी, मैगी, कैडबरी, ये सारे ट्रेडमार्क्स है. कॉपीराइट्स आर नथिंग बट बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली कंक्लूजन, बाहुबली बिगिनिंग, है ना. अभी कौन सा आया KGF 1, KGF 2, ये सारे नथिंग बट क्या है, कॉपीराइट है. तीसरा बनाना है अपने को, उनका परमिशन लेना पड़ेगा, वरना बना नहीं सकते. कॉपीराइट इज नीडेड. पेटेंट आर टेकन फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इन्वेंशंस. गुडविल इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मॉनिटरी रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. ये दिखते नहीं है लेकिन इनकी कीमत कमाल की है और टेंजिबल असेट्स से भी कई गुना ज्यादा है. दैट इज हाउ गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स. आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर फिक्स्ड असेट के एग्जांपल यहाँ पे लिखते बेटा. चलिए पहला फिक्स्ड असेट का एग्जांपल आप बताइए. दैट इज ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म असेट यहाँ पे लेने. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड मोटर कार. ये सारे एक कैश छोड़ा तो सब आ गया देखो यहाँ पे फिक्स्ड में. अब करंट असेट में क्या आता है. ऑब्वियसली ऑल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर. यहाँ पे ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है बेटा, लगाना भी मत. टेंजिबल और फिक्स्ड असेट का कोई कोरिलेशन, इंटेंजिबल असेट और करंट असेट का कोई कोरिलेशन मत लगाना, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट डिवीजन ऑफ असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड टेंजिबिलिटी. करंट असेट के एग्जांपल्स क्या है. इट इज सबसे पहले कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, जैसे मैंने आपको कल बोला था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, these are your short term assets example. Then debtors, stock and short term investments which are also called as marketable securities. तो ये सारा आप बता सकते हैं as an example of short term assets or current assets, assets which are easily converted into cash within 1 accounting year. And short term asset इसको बुलाते हैं, इसी को current asset बुलाते हैं. आप बोल सकते हैं इसमें करंट है. करंट इसलिए कि इसको फटाफट कैश में कन्वर्ट करना है. नॉन करंट में इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है, बट उसको हम यूज के लिए लेते हैं, ना कि हम बेचने के लिए लेते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस एज फार एज करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स आर कंसर्न्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे. प्रतीक, एनी डाउट? आप ऑनलाइन दिख रहे हैं. प्रतीक, कोई डाउट है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? पिक्चर इज क्लियर? प्रतीक, एनी डाउट इनटू दिस? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स if you are having any doubt. कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं. ओके चलिए आगे चलते हैं. तो दिस वाज यस्टरडेज डिस्कशन ओनली. आज लेते हैं अगला पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम क्या देख रहे हैं बेटा? ऑल दीज आर नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ बुक कीपिंग. कुछ बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं अपन. जैसे कल मैंने आपको बोला था व्हाट इज दिस. आपने बोला सर ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 5.
उसी के साथ ये क्या है, ABCDE। तो अपन अकाउंट की ABCD पढ़ रहे हैं अभी, isn't it? जब तक ये टर्म्स नहीं समझेंगे, कंसेप्ट नहीं समझेंगे, आगे बहुत दिक्कत होगी। तो अभी तक हमने कंसेप्ट क्या क्या देखे? सबसे पहले हमने देखा था ट्रांजैक्शन, दैट एवरी एक्टिविटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन, जैसे कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारा कुछ पैसे के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम ट्रांजैक्शन बुलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कैपिटल, उसके बाद असेट्स, असेट्स का हमने बाइफरकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसके साथ हमने देखा यस्टरडे व्हाट इज मीन्ड बाय डेटर। डेटर इज अ करंट असेट, that is the customers to whom goods has been sold on credit basis and money is to be received from them into the future। ऐसे कस्टमर जिनको हमने बेचा है क्रेडिट पे और उनसे पैसे आने हैं लेकिन फ्यूचर में आने हैं, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, डेटर बुलाते हैं, करंट असेट बुलाते हैं। दैट वी हैव सीन यस्टरडे एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज कंटेंट एंड दैट गोज ऑन लायबिलिटी। हमने कल डेटर लिख भी लिया था, तो अभी लायबिलिटी देखते हैं क्या है। लायबिलिटी कोई बुरी चीज नहीं बेटा, इफ पेड ऑन टाइम, इफ यू आर प्रॉम्प्ट इनफ एंड पेइंग ऑन टाइम, इवन लायबिलिटी जितना अच्छा पे करते हैं उतना सिबिल अच्छा आता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा आता है। आपने सिबिल के बारे में जरूर सुना होगा, कोई लोन लेना है आपको तो सिबिल की जरूरत होती है, और सिबिल अगर 800 के ऊपर तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम लगता है, और 800 के ऊपर तभी आता है अगर आपने लोन लिए है और उनको टाइम पे किया है, तो ही ये सिबिल अच्छा रहता है। आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि बिना लोन लिए तो सिबिल बहुत अच्छा रहेगा, इट इज अ मिसकंसेप्शन। आप लोन नहीं लेंगे तो आपका सिबिल मेरे ख्याल से 700 के आसपास रहेगा, और लोन लेके पे किया होगा, भले वो क्रेडिट कार्ड हो या छोटा सा लोन हो, तो आपका हो सकता है सिबिल 800 के ऊपर हो, बिकॉज इट शोज दैट यू हैव द रिपेमेंट कैपेसिटी एंड यू ऑलवेज पे ऑन टाइम। आप बोलेंगे फिर जिसने लोन नहीं लिया उसका 700 क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसको वो देता है या नहीं देता टाइम पे, ये भी देखना जरूरी है। दैट इज हाउ सिबिल उसका ज्यादा होता है जो लोन लेके उसको टाइम पे करता है। आप बोलेंगे लोन की जरूरत नहीं है तो भी पे करे, फिर एब्सोल्युटली नॉट। जब भी आप लेंगे, और ये तो जरूरी है कि आप कभी ना कभी कोई लोन लेंगे, मे भी क्रेडिट कार्ड एज वेल, क्रेडिट कार्ड भी लेके उसका पेमेंट टाइम पे करते तो सिबिल स्कोर बड़ा अच्छा आता है। तो दैट इज वन थिंग फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आजकल अपन हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। मार्केट में बड़ा मिसकंसेप्शन है बेटा, लोगों को लगता है कि सिबिल अच्छा आएगा अगर आपने आज तक लोन ही नहीं लिया। इट इज अ मिसकंसेप्शन, सिबिल अच्छा नहीं आता। सिबिल तभी अच्छा आता है अगर आपने लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका पेमेंट आपने टाइमली किया है, तो आपका सिबिल अच्छा इंप्रूव होता है। चलिए लायबिलिटी की तरफ चलते हैं। लायबिलिटी को समझने का एक सीधा सादा एग्जांपल है बेटा, टेक अ लोन। अगर किसी से भी आपने लोन लिया, घर से लिया, किसी से फ्रेंड से लिया या बैंक से लिया, लोन लेना मतलब उसको वापस देना जरूरी है। और लोन जब आता है तो उस दिमाग में एक चीज फ्लैश होती है, दैट लोन ऑलवेज कम्स विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा बैंक को जब भी आप लोन लेते हैं, एंड अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू डू द रीपेमेंट ऑफ लोन एज वेल। सो इट इज लायबिलिटी इज गोइंग टू बी रीपेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। से आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो आपको 5 साल के बाद लोन वापस करना ही पड़ेगा। सो दैट इज हाउ लोन इज टू बी रीपेड आफ्टर से 3 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन, जितने साल के लिए आपने लिया। तो लायबिलिटीज देखते हैं क्या है। जस्ट एग्जांपल के लिए बताया मैंने, बैंक लोन। लायबिलिटीज आर द अमाउंट्स व्हिच बिजनेस ओज। ओज मतलब लायबल टू पे टू अदर्स। दो चीजें हैं, व्हाट बिजनेस ओन्स एंड व्हाट बिजनेस ओज। व्हाट बिजनेस ओन्स इज एन असेट, जो बिजनेस का खुद का है उसको हम क्या बुलाएंगे बेटा, व्हाट बिजनेस ओन्स, OWNS। और जो बिजनेस को वापस देना है, किसी से लिया है, तो व्हाट बिजनेस ओज। ओज इज नथिंग बट लायबिलिटीज, ओन्स इज नथिंग बट असेट। तो बड़ा सिंपल यहाँ पे इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। मैं 2 चीजें आपको बोल रहा हूं। सो व्हाट बिजनेस ओन्स इज योर असेट। एम आई राइट स्टूडेंट्स? जो आप ओन करते हैं हम उसको क्या बुलाते हैं बेटा, assets. What business owns is nothing but the assets, and what business owes is nothing but liabilities. जो आप ओ करते हैं किसी और को, लाइबल होते हैं पे करने के लिए, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, liabilities. What business owns is an asset, what business owes is a liability. तो बड़ा सिंपल बात है, असेट और लायबिलिटी। मतलब जो आपका खुद का है, जो आप पजेस करते हैं, आप उसको असेट बुलाएंगे, और जो आपने किसी से लिया है उनको पे करना
मैंडेटरी है उसको आप क्या बुलाएंगे, लायबिलिटी। तो देखिए लायबिलिटी का डेफिनेशन फिर से आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, दीज आर द अमाउंट्स विच बिजनेस ओज टू अदर पार्टीज फॉर बेनिफिट्स ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो आपने उनसे ऑलरेडी बेनिफिट लिया है बेटा, क्या लिया बेनिफिट, आपने उनसे लोन लिया तो लोन वापस करना पड़ेगा, आपने उनसे रॉ मटेरियल खरीदा क्रेडिट में और पैसे देने बाकी है, तो उनको आप क्या बुलाते हैं, देन दीज पीपल आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर व्हाट, क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स फ्रॉम whom रॉ मटेरियल इज बॉट ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिटर्स कौन है बेटा, आपके सप्लायर्स है जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, और वो भी कैसे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो इनको पैसे देना तो बनता है, आज नहीं कल दोगे, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन पैसा तो देना बनता है। सो क्रेडिटर गिव्स राइज टू अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। क्रेडिटर किसको अराइज करता है, एक लायबिलिटी को अराइज करता है, क्योंकि आपको पे करना बाकी है। अब क्रेडिटर क्या क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो लायबिलिटी का मतलब बड़ा सिंपल है बेटा, व्हाट द बिजनेस ओज फॉर बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। जैसे कि आपने लोन लिया, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, क्रेडिट पे पैसे देना बाकी है, तो हम उसको क्या कॉल करेंगे, क्रेडिटर्स। सो इट इज बैंक लोन एंड क्रेडिटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी हियर। Liabilities are obligations, ये जरा चतुर वाली डेफिनेशन, चतुर वाली 3 इडियट्स आपने देखा होगा, तो ये चतुर वाली डेफिनेशन है। Liabilities are obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in the future। तो ये obligations है फॉर्म पे, कंपनी पे, जो एंटरप्राइज पे करेगा कब, फ्यूचर में। आज बेनिफिट लेगा, कल पे करेगा। जैसे कि लोन आज लिया, पैसा आपके पास आ गया, एंजॉय किया आपने, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे अभी नहीं दिए, फ्यूचर में देंगे, तो ये भी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड, जैसे एसेट का क्लासिफिकेशन हमने किया था, उसी तरह लायबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एब्सोल्युटली, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, अगर आपने लोन लिया है, वो भी लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मतलब 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का, तो इसको लॉन्ग टर्म बुलाया जाता है। अगर आपने वही लोन 1 साल के लिए लिया, तो उसको क्या बुलाया जाता है, करंट लायबिलिटीज। 1 साल का लोन अगर आपने लिया, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि 1 साल के अंदर उसको रीपे करना है। तो द लायबिलिटीज व्हिच आर बाउंड टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज, एंड द लायबिलिटीज व्हिच कैन बी पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको बुलाते हैं, जो 1 साल बाद आपको पे करनी है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बुलाएंगे, जैसे कि लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। Whereas शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज आर नथिंग बट द लोन्स व्हिच आर रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या क्या है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। अब सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जरूरी है बेटा जानना। जैसे डेटर हमने देखा, डेटर इज एन असेट एंड अ शॉर्ट टर्म असेट। डेटर्स आर नथिंग बट द कस्टमर्स टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर्स ऐसे कस्टमर है जिनको आप क्रेडिट में बेचते हैं और शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे बेचते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, क्योंकि 1 साल में पैसा वापस आना पक्का बनता है। तो जिसको हमने बेचा है कस्टमर को, कस्टमर हमें पैसा वापस देगा, तो हम उसको बुलाते हैं अपना डेटर। बात बड़ी सिंपल है बेटा। यहां पे आपको मैं एक चीज बताता हूं, लेट्स से दैट यू आर अ सेलर। यही एग्जांपल लेते हैं, ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। ए क्या है, सेलर है, और बी क्या है, बायर है। अब ए बेच रहा है बी को, क्योंकि ए सेलर है और बी बायर है। अब 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट कितने हुए, 2 अलग बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए। यहां पे एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ए रिकॉर्ड करेगा अपने अपने बुक में कि कितना बेचा, बराबर है क्या बेटा। और बी कौन है, बी क्या है, बायर है ना, उसके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, बीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे और बी के भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। ए ने बेचा बी को, और कितने महीने के लिए बेचा, क्रेडिट पे
लेट्स फॉर एग्जांपल 3 महीने के क्रेडिट पे बेचा 10 करोड़ का माल, तो ए के बुक्स में बी को हम क्या बताएंगे अभी? बी विल बी शोन एज अ डेटर। क्यों? क्योंकि ए सेलर है और बी बायर है। अब ए ने तो सेल कर दिया, अब ए ने सेल किया लेकिन पैसे मिले क्या? ए को पैसे नहीं मिले। बी पैसे कब देगा? पैसे देगा बी, कितने का बेचा हमने? 10 करोड़ का, फॉर 3 मंथ्स। अब बोलेंगे ऐसे ही बेचेंगे क्या? नहीं बाबा, ये बड़े यू कैन से दैट ट्रस्टेड सेलर बायर है, सालों से बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इसने बेचा 10 करोड़ का, पैसा आएगा 3 महीने में, लेकिन तब तक अकाउंटिंग में एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप बताएंगे दैट ए इज सपोज टू पे व्हाट? ए हैज सोल्ड एंड बी इज सपोज टू पे। बी कितना पे करेगा 3 महीने बाद? 10 करोड़। लेट्स से इट इज 25th ऑफ जुलाई, राइट? तो 25th ऑफ जुलाई से 3 महीना पकड़ेंगे, तो 25th ऑफ अगस्त, 25th ऑफ सितंबर, 25th ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में आपको पे करना पड़ेगा, वो भी 25 अक्टूबर को। किसको पे करना पड़ेगा? बी पे करेगा ए को। अब ए ने बी को क्या बताया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? बताया कि बी मेरा क्या है? बी मेरा क्या है? बी इज माय डेटर। उसी तरह से बायर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, क्योंकि उसको भी देखना है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सारा अकाउंट तो अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी बताएगा ए को, क्या बताएगा बेटा? बी विल शो एज ए को क्या बताएगा? बी क्रेडिटर। बड़ा सिंपल है, देखिए। सो सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बायर क्या है? डेटर। और बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में सेलर क्या है? क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है? सेलर ने तो क्रेडिट में बेचा, सेलर इज सपोज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बायर आफ्टर 3 मंथ्स। तो जिसने बेचा है उसके लिए तो ये असेट बना, शॉर्ट टर्म असेट, क्योंकि बेचा, पैसा नहीं मिला, पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद। जिसने खरीदा उसने अपने लिए लायबिलिटी खरीदे। क्यों? उसको बेनिफिट तो आज ही मिल गया। उसने 10 करोड़ का माल खरीदा, पेमेंट किया क्या? पेमेंट नहीं किया। पेमेंट करने वाला है, कब करेगा? 25 अक्टूबर को, 3 महीने बाद आज से लेके। सो दैट वे अराउंड ए बताएगा बी को कि बी मेरा डेटर है, बी मेरा असेट है, पैसा आना बाकी है 10 करोड़। बी बताएगा ए को कि ए मेरी लायबिलिटी है, इससे मैंने 10 करोड़ का माल खरीदा है और उसको पेमेंट करना मैंडेटरी है, बट आफ्टर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। दैट इज व्हाट द डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप, सेलर एंड बायर। बड़ा सिंपल है, सेलर एंड बायर का रिलेशनशिप है बेटा। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर कि डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है। डेटर ऑब्वियसली एन एसेट है बिजनेस के लिए, क्रेडिटर ऑब्वियसली लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि डेटर मतलब बिजनेस ने उसको क्रेडिट में बेचा, पैसा आना बाकी है। क्रेडिटर मतलब आपने उनसे बेनिफिट अभी लिया जिसका पैसा आप देना बाकी है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक बोलेगा कि ये कस्टमर मेरा क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे से 10 करोड़ का लोन उठाया और ये पे करने वाला आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, दैट वे अराउंड। सो दैट इज हाउ इट इज अ कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी एंड असेट इन टर्म्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। मेरे ख्याल से क्रेडिटर फिर से आपको बता देता हूं मैं। So if the business buys goods or services on credit and amount is still to be paid to the person or other entities, these are called as creditor। यानी आपने जिससे माल खरीदा वो भी कैसे खरीदा बेटा? क्रेडिट में खरीदा। आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, आप देंगे कब? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो तब तक के लिए दिस इज कॉल्ड एज योर क्रेडिटर। आप इसको क्रेडिटर बुलाएंगे। सो इफ द बिजनेस बाइज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट and amount is still to be paid to the person and other entities, these are called as creditors। These are liabilities for the business। creditor business के लिए क्या होती है? liability। beyond doubt creditor is a liability for the business। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा है लेकिन उनको पेमेंट अभी तक किया नहीं। so you have to make the payment for the benefits you have already received from them। उनसे आपको बेनिफिट मिला है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? क्रेडिटर बुलाएंगे। सो दैट इज हाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर, दीज आर लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। आगे क्रेडिटर्स अलग अलग टाइप के दिए हैं। क्रेडिटर्स किस चीज के लिए क्रिएट होते हैं? क्रेडिटर क्रिएट होगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। कैसे? क्रेडिट पे। आपने रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर से क्रेडिट पे, पेमेंट आप 2 महीने बाद देंगे, तो ये क्या हुआ?
creditor for purchase of raw material. देखिए पहला दिया है suppliers who have provided raw material on credit basis, this is called as creditors for purchase of raw material. दूसरा, banks or financial institutions which have given loans to your business are creditor for loan taken. दूसरा creditor कौन सा बेटा, ये भी creditor है लेकिन लोन लेने के लिए, आपने लोन लिया उनसे इसलिए ये आपके क्रेडिटर है। जैसे कि आपने एसबीआई से लोन लिया, आईसीआई से लोन लिया, एचडीएफसी से लोन लिया, आपने बोला सर ये एफआई क्या है? बैंक तो सबको पता है, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। और भी बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या आता है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, व्हाट नॉट, दीज आर डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कम होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट चाहता है इनको कम करे और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को लाए। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे, कोटक, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। फॉरेन बैंक्स है एचएसबीसी, एचएसबीसी फॉरेन बैंक है, ये फॉरेन बैंक का एग्जांपल। कोऑपरेटिव बैंक है पूना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड ए नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर। तो जिनसे आपने लोन लिया, पे करना बाकी है, तो आपका क्या हुआ? क्रेडिटर फॉर लोन टेकन। मैं बता रहा था कि एफआईएच क्या है। एफआईएच पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जो आईसीआईसी थी पहले, लेकिन लैटर इट वाज कन्वर्टेड इनटू बैंक। तो आजकल एफआईएच का कंसेप्ट ही नहीं है, आजकल कंसेप्ट है बैंक्स का। और बैंक्स में बाफिकेशन आप बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये चार टाइप है, चारों के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्रेडिटर माय डियर, दैट इज क्रेडिटर फॉर लोन बोरोड। लोन बोरोड, बोरोड एक वर्ड होता है अकाउंट्स में। अब अलग अलग जार्गन खुलेंगे आपके लिए। बोरोड जिसको हम बुलाते हैं, मतलब लोन लिया आपने। टू बोरो मीन्स you can say that to take, but not for not paying or benefits received right now and you are supposed to pay in the future. So ye to borrow means to take the benefit and for them you are supposed to pay in the future. तो इसको borrowing भी बुलाते हैं, लोन को borrowings भी बुलाते हैं। तो दो तरह का क्रेडिटर हमने अभी देखा। पहला देखा क्रेडिटर्स फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा हमने देखा क्रेडिटर्स फॉर लोन टेकन। तीसरा देखते हैं क्या दिया है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, बहुत सालों से रहते हैं और ओनर और आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया और आपने ओनर को बोला कि 6 महीने का रेंट मैं आपको नहीं दे सकता, अभी 6 महीने के बाद डायरेक्टली मैं आपको रेंट दूंगा। लेकिन रेंट आप पहले कैसे दिया करते थे? हर महीने के आखिरी में। अब देने वाले हो क्या? नहीं, अभी 6 महीने नहीं दोगे, डायरेक्टली 6 महीने बाद आप बोलोगे रेंट इज आउटस्टैंडिंग बट नॉट पेड, रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। तो आप देंगे लेकिन 6 महीने बाद, तब तक आपको इसको लायबिलिटी बताना पड़ेगा। एंड दिस इज अनदर लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किए, इसके लिए लायबिलिटी आपकी अराइज होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग आउट ऑब्वियसली फॉर वेटिंग फॉर पेमेंट टू बी डन, ऐसा हम इसको लाइटली बोलते हैं। सो इट इज स्टैंडिंग आउट वेटिंग फॉर द पेमेंट टू बी डन एंड दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द पार्टीज टू हुम expenses are due but not paid and that is called as creditors for expenses. So it is, इसमें क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन। जैसे रेंट का एग्जांपल दिया उसी तरह से समझ लीजिए बेटा। कमीशन आपको देना है लेकिन आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। सो इट इज इंटरेस्ट विच इज ड्यू बट नॉट पेड। सपोज आपने लोन लिया बैंक से और पिछले 6 महीने से आपने इंटरेस्ट नहीं दिया उनको, तो बैंक क्या बोलेगा? रेंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बैंक बोलेगा नॉट रिसीव्ड क्योंकि उसको अभी तक मिला नहीं। और आप क्या बोलेंगे? रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि आप तो देना बाकी है। तो दैट इज हाउ क्रेडिटर 3 टाइप के होते हैं बेटा। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिटर फॉर लोन टेकन और लोन बोरोड एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। और एक चीज आपको बताता हूं बेटा इंटरेस्टिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बड़े डिफरेंट नाम आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को और क्या बुलाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ध्यान इस और खींचना चाहता हूं। सो इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग
expenses. This is term number 1. इसको और क्या बुलाते हैं? Same is called as unpaid expenses. इसी को हम क्या बुलाते हैं? Unpaid expenses. That is expenses due but not paid. उसी को हम क्या बुलाते हैं? Expenses due but not paid. Expenses due but not paid. और इसी को हम बुलाते हैं, एक बड़ा टेक्निकल नाम है, that is called as accrued expenses. Accrued expenses. आप बोलेंगे कि ये सर accrued क्या है? आम पता है आपको आम कब आते हैं? When mango season is there. मैंगो कब आते हैं? यूजुअली मैंगोज पकना कब चालू होते हैं? नेचुरली अगर देखेंगे तो आम पकना चालू होते हैं मार्च, अप्रैल, मई, राइट? दैट इज द बेसिक सीजन. आप बोलेंगे सर नहीं, हम तो जनवरी में भी आम खाते हैं. अच्छी बात है. दोज आर नॉट नेचुरली रीप्ड, यू कैन से. वो राइपनिंग जो होता है बड़ा बढ़िया प्रोसेस होता है, लेकिन नेचुरल तरीके से किया. तो उसको आप आर्टिफिशियल तरीके से तो पकाएंगे तो आजकल माना जाता है कि फिर आम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, किसी भी फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती. अक्रूड का मतलब क्या है? आम खाना कब अच्छा माना जाता है? जब वो पक जाएंगे. एम आई राइट? सो मार्च, अप्रैल, मई. सो अक्रूड का मतलब क्या है? दैट यू शुड एंजॉय इट व्हेन द प्रॉपर पीरियड इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रूट. सेम इज देयर विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स देयर. अलग अलग फ्रूट्स के लिए वही होता है. तो अक्रूड का मतलब क्या है? जैसे कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, तो आपको सैलरी कब मिलनी चाहिए? पूरा महीना काम करने के बाद या महीना शुरू होने के पहले? महीना शुरू होने के पहले तो कोई सैलरी नहीं देगा, आपको बोलेगा पूरा महीना काम कीजिए, फिर ये महीने की सैलरी आपको इस महीने की या तो आखिरी डेट पे मिलेगी या तो अगले महीने की शुरुआत में मिलेगी. दैट इज हाउ सैलरी इज अक्रूड बट नॉट पेड फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू. From employee point of view, salary is due but not received. क्योंकि उसको तो आना बाकी है, आपका देना बाकी है. तो आपके लिए लायबिलिटी है, उसके लिए असेट है. आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है क्योंकि सैलरी तो देनी पड़ेगी, उसके लिए शॉर्ट टर्म असेट है, उसको रिसीव होना पड़ेगा, वरना उसका घर कैसे चलेगा बिना सैलरी के? सैलरी का एग्जांपल इसलिए फटाक से लोगों को समझ में आता है बिकॉज पीपल आर इन द मेंटालिटी ऑफ डूइंग अ जॉब देयर. Same way is interest. Interest is outstanding, means due but not paid. Accrued but not paid. Accrued का मतलब क्या है? कि वो पकेगा कब? सैलरी कब मिलनी चाहिए? महीने के आखिरी में. रेंट कब पे करना चाहिए? रेंट महीने की शुरुआत में या महीने के आखिरी में. दैट इज नथिंग बट इन बिटवीन द टर्म्स एग्रीड बिटवीन द ओनर एंड द टेनेंट. तो अक्रूड इज नथिंग बट जब उसका प्रॉपर पीरियड आएगा तभी आपको देना है. बट ये ड्यू बट नॉट पेड ही इसका मतलब है. अक्रूड का मतलब दोनों तरह से हो सकता है बेटा, ड्यू बट नॉट पेड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. अक्रूड एक्सपेंसेस के बजाय अक्रूड इनकम लिखेंगे, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. उस तरह से ये टर्म आगे जाएगी. तो मैंने 4 आपको टर्म्स बताई यहाँ पे. तो अकाउंट्स और फाइनेंस बस टेक्निकल जार्गन का खेल है बेटा. ये जार्गन जिसको पता है उसकी तो नैया पार हो गई, वो एंजॉय करेगा. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज वन थिंग, सेकेंड इज अनपेड एक्सपेंसेस, थर्ड इज एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एंड फोर्थ इज अक्रूड एक्सपेंसेस, जिसको हम एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड बुलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुलाते हैं, मतलब देना बाकी है लेकिन अभी तक आपने नहीं दिया. ये चारों नाम आप लिख सकते हो बेटा. तो हमने अभी 3 तरह के क्रेडिटर्स देखे आपके इंफॉर्मेशन के लिए. क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिटर्स फॉर लोन बोरोड, एंड देन क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और ये तीनों लायबिलिटीज है बिजनेस के लिए. तो I would rather request you to copy it down, creditor as it is, Pratik and Harsh. Creditors का definition लिख लीजिए बेटा, और साथ में इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए. Any doubt till here, Pratik? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो जरूर बताइए. With pleasure. I'm here to answer your doubt. You can write in the chat box if you are having any doubt. कोई अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा. फटाक से क्रेडिटर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है. 3 तरह के क्रेडिटर्स मैंने लिखे हैं. आई बिलीव यू मस्ट बी एंजॉइंग अकाउंटिंग. ये टर्म्स बड़े आसान हैं,
बस समझने वाला चाहिए, साथ में समझाने वाला भी चाहिए, है ना, बड़ा आसान हो जाता है मामला। नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, एब्सोल्युटली इट इज फैंटास्टिक रादर। उसको बस ठीक तरह से लर्न करना जरूरी है बेटा। प्रतीक, एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? प्रतीक, you can write down in the chat box if you are having any doubt, and please copy creditors। क्रेडिटर्स जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो लिखना है बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो लोग लिखते नहीं है। ये गलती बिल्कुल मत करना बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस रखो, विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू। राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। And we are not waiting for others, we already started there। तो 20 आए, 40 आए या 200 आए, हमने क्लास शुरू कर दिया अभी, so that we can take speed and we can complete the portion for your different exams as well, और आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और एनीवेज जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए बैकअप तो रहेगा, जो कुछ लेक्चर हुए तो डे 1 से वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत होने का चांस नहीं है। तो ये एक अच्छा गिफ्ट है, आप बोल सकते हैं कोरोना ने क्या दिया, तो ये एक अच्छा गिफ्ट दिया। बुरा छोड़ देते हैं पीछे, वैसे भी उसको अपन भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, isn't it? ये अच्छी चीज दी है उन्होंने। ऑनलाइन लर्निंग इज अ गुड मेथड there। It saves your time, it saves your energy, it saves your cost। Obviously online is basically a fantastic mode of education there। डन? हर्ष, प्रतीक, नीचे बताऊं? इफ यू आर डन टिल हियर, तीसरा जो नीचे टाइप दिया वो भी बता देता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अलग अलग नाम भी लिखे हैं मैंने, आप लिख सकते हैं। सिनोनिम्स पता रहना अकाउंट्स में बहुत जरूरी है बेटा। फाइनेंस अकाउंट्स में सिनोनिम्स अगर पता रहे तो जर्नी और इंटरेस्टिंग और आसान हो जाती है। वी हैव स्टार्टेड विथ लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर्स में काफी हमारा टाइम लिया। अब जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिफरेंट लायबिलिटीज क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतीक, इज इट डन? यहां तक लिख लिया बेटा? प्लीज रिप्लाई क्विकली इफ यू आर डन, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलर बताएगा बायर को कि बायर मेरा डेटर है, और बायर बताएगा सेलर की ये मेरा क्रेडिटर है। अब देखते हैं, फिर से बाइफरकेशन पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज विच आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसे लायबिलिटी जो आपने लिए है लेकिन पेमेंट आप शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे। एग्जांपल दिया यहाँ पे, लोन टेकन फॉर मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। आगे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, इसमें क्या दिया है, दीज आर ऑब्लिगेशंस दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये ऐसे ऑब्लिगेशन है जो आप 1 साल के अंदर पे करेंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? से यू आर हैविंग अ बैंक अकाउंट, आपका एक बैंक अकाउंट है बेटा, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली गिवन टू अ करंट अकाउंट होल्डर। वैसे बैंक अकाउंट अलग अलग टाइप्स के लिए होते हैं। आपका जो होता है एक कॉमन इंडिविजुअल का,
जिसका कोई बिजनेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज विच अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। और जो बिजनेस ओपन करता है उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? करंट अकाउंट। आप बोलेंगे फर्क क्या है दोनों में? बहुत फर्क है बेटा। सेविंग अकाउंट में बस आपके कभी कभार पैसे आते हैं और आप बार बार विड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक सैलरी अकाउंट है, महीने में एक बार सैलरी आएगी, महीना भर खर्च होते रहेगी, फिर से अगले महीने सैलरी आएगी, इस तरह से। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट है, रोज आप ट्रांजैक्शन उसमें करेंगे, पैसा आएगा पैसा जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, आप कैश रिसीव करेंगे, तो इट इज अ करंट अकाउंट, मीन्स इट इज अ कंटिन्यूअस अकाउंट वेयर मनी इज पेड एंड मनी इज रिसीव्ड। आप खरीदेंगे बेचेंगे, दैट इज हाउ इट इज अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन अ चेक टू हर्ष, मैंने हर्ष को एक चेक दिया। आज हर्ष इज माय सेलर एंड आई एम द बायर। हर्ष मेरा सेलर है, मैं उसका बायर हूं। हर्ष ने मुझे गुड्स बेचे 2 लाख रुपए के और मैंने हर्ष को चेक दे दिया 2 लाख का। हर्ष ने बेचे 1 जुलाई को और मैंने उसको 10 जुलाई का चेक दे दिया। अब 10 जुलाई को हर्ष ने चेक लगाया बैंक में। अब मैं तो एक अच्छा कस्टमर हूं बैंक का, लेकिन किसी वजह से मुझे ये स्किप हो गया मेरे दिमाग से और मेरे बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए है। चेक कितने का दिया मैंने? 10 लाख का। अब बैंक मैनेजर का मुझे फोन आया। आप बोलेंगे इतने सारे कस्टमर में बैंक को टाइम है क्या आपको फोन करने को? बैंक को टाइम जरूर है, क्योंकि बैंक को पता है कि ये मेरा अच्छा कस्टमर है बड़े टाइम से, तो कम से कम इसको एक बार पूछूं कि इसने चेक तो 10 लाख का दिया और बैलेंस अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो बैंक मैनेजर ने मुझे फोन किया कि सर आपका चेक आया 10 लाख का, लेकिन आपके अकाउंट में अवेलेबल है ओनली 9 लाख, सो देयर इज अ शॉर्टफॉल इन माय बैंक अकाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। अब चेक ऑनर होगा क्या? नहीं होगा। देखा जाए तो आइडियल केस में ऑनर नहीं होगा। बैंक मैनेजर ने पूछा कि आप या तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए या तो ये चेक क्या होगा? नाचेगा, बाउंस करेगा, है ना? तो बाउंसिंग ऑफ चेक बोलते हैं इसको। ऑब्वियसली बाउंसिंग ऑफ चेक इज नथिंग बट डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक विल लेवी पेनल्टी और फिर से आपका सिबिल खराब हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो बैंक मैनेजर ने आपको जैसे ही पूछा, अब मुझे याद आया कि 1 लाख रुपए तो अभी इमीडिएटली डिपॉजिट करने के लिए है नहीं। मैंने इमीडिएटली बैंक मैनेजर को ही रिक्वेस्ट किया कि कैन यू डू समथिंग फॉर मी, कैन आई अवेल अ शॉर्ट टर्म लोन इन टर्म्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? तो बैंक मैनेजर ने बोला कि हाँ आपका क्रेडिट हिस्ट्री बड़ा अच्छा है, तो वी कैन गिव यू अ बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बोला मैं 2-3 दिन में पैसे डिपॉजिट कर देता हूं। तो बैंक ने मुझे शॉर्ट टर्म लोन दिया। कितने का दिया? 1 लाख का। इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा बेटा? उतने दिन का लगेगा जितने दिन मैं उसको यूज करूंगा। अगर मैंने 4 दिन में पैसे डिपॉजिट कर दिए तो मुझे उतना इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, बाद में मैंने इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मुझे देना पड़ेगा एंड ट्रांजैक्शन स्टेबल। मतलब 10 तारीख को हर्ष को पैसे जरूर मिलेंगे, दो आई डोंट हैव sufficient balance in my bank account. So bank overdraft is nothing but the shortfall in your bank account, and in that case you are taking a short term loan from the bank for the required shortfall. Shortfall को आप पूरा करने के लिए जो लोन लेते हैं उसको आप बैंक ओवरड्राफ्ट बुलाते हैं। याद रखिए बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट कैन बी टेकन ओनली ऑन करंट अकाउंट। सेविंग्स वालों को बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता, वरना आप गए सेविंग्स वाले बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है, ऐसा सर ने बोला था। नहीं मिलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन टू अ बिजनेस बैंक अकाउंट, दैट टू ओनली इफ यू आर हैविंग अ सैटिस्फैक्टरी क्रेडिट रेपुटेशन इनटू द बैंक, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये भी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि 4 दिन के लिए मैंने लोन लिया है, जैसे ही पेमेंट करूंगा तो लोन वो खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। 4 दिन के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बचा क्या? बिल्स पेएबल। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि मैंने ए ने बी को बेचा और बी ने ए से खरीदा सीधा 10 करोड़ का, और ये ट्रांजैक्शन हुआ आउट ऑफ फेथ, एंड दीज आर द बायर एंड सेलर सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बायर और सेलर बड़े लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। अब नया कस्टमर और उसके साथ सेलर है। सेलर नए कस्टमर को फटाक से 10 करोड़ का बेचेगा क्या 3 महीने की क्रेडिट पे? नहीं, पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, देखेगा कि ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। देन ओनली सेलर विल डिसाइड दैट कि इसको सेल करना है या नहीं क्रेडिट पे। अब सपोज जैसे मैंने बोला, अभी हर्ष और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, अभी मैंने सिर्फ 10 लाख का बोला था। लेट्स अज्यूम दैट द सेम ट्रांजैक्शन इज विथ प्रतीक। प्रतीक के साथ मैं दूसरा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। प्रतीक अगेन सेलर है, मैं बायर हूं। अब प्रतीक मुझे 5 लाख का बेचना चाह रहा है, लेकिन मैं नया कस्टमर हूं प्रतीक के लिए। तो प्रतीक तो चेक करेगा कि ये पे करेंगे या नहीं टाइम पे, इनका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। और प्रतीक को पता चला कि इनका क्रेडिट हिस्ट्री
ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रतीक फिर भी श्योर होना चाहता है कि इनको बेचेंगे तो कोई रिस्क तो नहीं है। तो प्रतीक ने क्या बोला कि इनवाइस तो रहेगा, दैट इज इनवाइस इज नथिंग बट अ प्रूफ ऑफ सेल और प्रूफ ऑफ परचेस। जैसे ही आप क्रेडिट पे खरीदेंगे तो आपको क्रेडिट मेमो मिलता है कि आपने इतने का माल खरीदा, ये डेट पे खरीदेगा, और पेमेंट आप 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे। कैश पे खरीदा तो कैश मेमो मिलता है, आपने खरीदा, पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन सेटल्ड। एक को रिसीव हुआ, दूसरे ने पे किया, आपने माल दिया, सामने वाले ने पैसे दिया, कैश ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। क्रेडिट में गड़बड़ है, क्यों? यहाँ पे क्रेडिट मेमो इश्यू हुआ, क्यों? क्योंकि एक ने क्रेडिट में बेचा, दूसरे ने क्रेडिट पे खरीदा। अब मैंने जैसे बोला प्रतीक मेरा सेलर है और मैं उसका बायर हूं। अब प्रतीक सेल करेगा 5 लाख का मुझे, लेकिन प्रतीक ने बोला कि आई वांट टू बी श्योर इनफ, तो मैं आप पे एक बिल ड्रॉ करूंगा जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइन करके मुझे वापस देना पड़ेगा। इट इज एन एडिशनल प्रूफ दैट आई सोल्ड यू गुड्स वर्थ ₹5 लाख ऑन 2nd of July and payment will be received after 1 month, that is 2nd of August। तो प्रतीक ने बेचा मुझे 5 लाख का और बिल ड्रॉ किया और बिल मुझे भेज दिया। मैंने बिल पढ़ा, 5 लाख का खरीदा है, 2 जुलाई को खरीदा और 2 अगस्त को पेमेंट होगा, ऐसा सारा लिखा है। मैंने उस पर साइन कर दिया और बिल वापस भेज दिया सेलर को। अब सेलर के पास 2 प्रूफ है, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो उन्होंने मेरे पे ड्रॉ किया था, और दूसरा जो इनवाइस, दैट इज प्रूफ ऑफ परचेस एंड प्रूफ ऑफ सेल। उनके लिए प्रूफ ऑफ सेल, प्रतीक के लिए, क्यों? क्योंकि वो सेलर है। मेरे लिए प्रूफ ऑफ परचेस, क्यों? क्योंकि मेरे लिए प्रूफ ऑफ परचेस है। तो दैट इज हाउ उसने एक बिल मेरे पे ड्रॉ किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, पहले की इसमें क्या था, ए सेलर था और बी बायर था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बी को बता रहा है डेटर, और बी बता रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ए को क्रेडिटर। अब फिर से प्रतीक और मेरे में ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो प्रतीक इज सेलर और ये प्रतीक के बुक्स ऑफ अकाउंट है, एंड हियर आई एम द बायर। मैं यहाँ पे बायर बन के बैठा हूं, ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये प्रतीक का बुक्स ऑफ अकाउंट है। अब प्रतीक बताएगा मुझे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्रतीक मुझे क्या बताएगा? सीधी बात है, प्रतीक ने मुझे बेचा और मैं उसको पेमेंट करना एक्सपेक्टेड है। सो आई एम गोइंग टू बी शोन इन प्रतीक बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एब्सोल्युटली डेटर। लेकिन यहाँ पे डेटर के साथ मुझे और एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, एंड आई विल बी कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। आप बोलेंगे कि सर दोनों में फर्क क्या है? एक ट्रस्टेड कस्टमर है, दूसरा नया कस्टमर है। पैसे तो दोनों से आने हैं बेटा, पैसे तो डेटर भी देगा, पैसे तो बिल्स रिसीवेबल भी देगा। फिर इसको बिल्स रिसीवेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नया कस्टमर है, इसलिए आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बिल उस पर ड्रॉ किया है, तो उसको बिना डेटर बुलाए आप क्या बुला रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल। मतलब तो सेम ही है, डेटर इज असेट, बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो असेट। डेटर से भी पैसा आना है, बिल्स रिसीवेबल से भी पैसा आना है। फर्क क्या है? बिल्स रिसीवेबल पे एक एक्स्ट्रा बिल ड्रॉ किया है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज ये असेट है। और इधर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं तो बायर हूं, मैं बताऊंगा प्रतीक को। प्रतीक को क्या बताऊंगा? प्रतीक, प्रतीक मेरा क्या है? प्रतीक मेरा क्रेडिटर है। आज वाला आज प्रतीक मेरा क्या है? बिल्स पेबल है, क्योंकि मैं उसको पे करना एक्सपेक्टेड है। बड़ा सिंपल है बेटा। प्रतीक बताएगा कि दीपक से मुझे आना एक्सपेक्टेड है, और मैं बोलूंगा कि प्रतीक को मुझे देना एक्सपेक्टेड है। सो ही विल से दैट आई एम हिज डेटर, आई विल से दैट ही इज माय क्रेडिटर। दैट इज द डिफरेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, फिर से ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में बी को बताया, बी के बुक्स ऑफ अकाउंट में ए को बताया, वही है। मैंने दूसरा एक एग्जांपल लेके आपको बताया, एंड आई होप दिस एग्जांपल क्लैरिफाइज यू what is meant by creditor, all 3 types of creditor, and what is the difference between creditor and bills payable, debtors and bills receivable। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ये सेम है। फिर भी एक टर्म आती है अकाउंट्स में, आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लियर कर दूं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इसको ब्रॉडली अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं बेटा अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको हम क्या बुलाते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। ये दोनों से पैसा आना एक्सपेक्टेड है बिजनेस को,
और दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? दूसरा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, एंड दिस इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज अकाउंट्स पेबल। ऑब्वियसली ऊपर वाला असेट है और नीचे वाली लायबिलिटी है। दिस इज अ लायबिलिटी एंड दिस इज एन असेट। ये ऊपर वाला आपके लिए असेट है, नीचे वाली क्या है? लायबिलिटी है। चलो फटाफट लिख लो बेटा। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल, दोनों से पैसा आना एक्सपेक्टेड है। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, दोनों से पैसा पे करना एक्सपेक्टेड है, बिजनेस उनको पे करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज अकाउंट्स पेबल। बताइए बेटा प्रतीक, कोई डाउट है? हर्ष, कोई डाउट है यहां तक? गेटिंग इट वेरी क्लियरली? एनी डाउट प्रतीक टिल हियर? आर यू देयर? Any doubt, please? Pratik, are you there? You are writing it. Any doubt into this? कोई डाउट है बेटा इसमें? गुड, कॉपी कर लीजिए। Debtors plus bills receivable is your asset known as accounts receivable. Creditors plus bills payable is your liability known as accounts payable. I hope liabilities are clear with you now. Liabilities का bifurcation हमने किया, long term liabilities and short term liability. Long term liability को fixed liabilities भी बोलते हैं, याद रखिए। long term liabilities are also called as fixed liability, और short term liability को हम क्या बुलाते हैं? current liabilities. Short term liabilities को हम current liabilities भी बुलाते हैं। The liabilities which are bound to be paid within one accounting year are called as current liabilities. तो उस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन टेकन, ये सारा आता है आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में। सो यू नो दैट, एंड दैट इज क्वाइट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर वी आर डन विथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। फिर से इसको याद रखिए बेटा। So what owns is an asset and what owes is a liability. पूरा अकाउंट्स इसके इर्द गिर्द घूमता है। जो आपका खुद का है, बिजनेस का खुद का है, आपका असेट्स है, ओनरशिप है, पोजीशन है, उसको हम क्या बुलाते हैं? असेट्स। और जो आपको पे करना है उसको हम क्या बुलाते हैं? लायबिलिटीज। सो आपका आना और आपका देना, ये असेट्स और लायबिलिटीज। आना मतलब आना और खुद का, दैट इज असेट्स। देना मतलब इट इज अ liability. What a business owns is asset, what a business owes is a liability. Liabilities and claims बोलते हैं, and assets and properties बोलते हैं। assets, properties and possessions, क्योंकि property मतलब आपका possession है, asset है आपका, और liabilities are nothing but the amounts which are payable to other parties for benefits already received from them. Best example है बैंक लोन। आपने लोन लिया तो उसका EMI देना जरूरी है, इंटरेस्ट देना जरूरी है, प्रिंसिपल देना जरूरी है। So that is how assets and liabilities. So I hope you are getting this and perfectly no problem there. तो हमने assets और liabilities, उसके types, debtor, creditor, ये सारा देख लिया। accounts receivable, accounts payable भी देख लिया। debtors we are done. purchases और sell कितने तरह के होते हैं? देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप कैश में खरीद सकते हैं, आप क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। कैश में खरीदा तो आप कैश पे करेंगे, ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा। क्रेडिट में खरीदा तो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ, क्योंकि आपने पेमेंट अभी नहीं किया है। यू हैव रिसीव्ड द रॉ मटेरियल और गुड्स बट फॉर विच यू हैवंट मेड द पेमेंट। पेमेंट करना अभी बाकी है, जो फ्यूचर में करेंगे। तो कैश परचेसेस के लिए आपने कैश पे किया, क्रेडिट परचेसेस के लिए आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे बट इन फ्यूचर। उसी तरह से कैश सेल्स के लिए आपको कैश मिल गया, क्रेडिट सेल्स के लिए आपको पैसा मिलेगा एज अ सेलर बट इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डेटर। सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, डेटर गिव
rise to an asset, whereas creditor give rise to a liability. Or simply I can say that cash purchases give rise to a liability called as creditor, and cash sales give rise to a asset which is named as debtor. आप कैश में बेचेंगे तो एक asset create होगा, am I right? Sorry, आप कैश में बेचेंगे तो कैश मिलेगा, क्रेडिट में बेचेंगे तो असेट क्रिएट होगा इन टर्म्स ऑफ डेटर, और क्रेडिट में खरीदेंगे तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर. सो दैट इज व्हाट क्रेडिट परचेसेस गिव्स राइज टू अ लायबिलिटी एंड क्रेडिट सेल्स गिव राइज टू अ असेट व्हिच इज नोन एज डेटर. क्रेडिट में बेचेंगे तो असेट क्रिएट होगा डेटर, और क्रेडिट में खरीदेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज क्रेडिटर. याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांजैक्शन वहां पे लिखा है बेटा, जो हमने कल ही देखा. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस and purchase of raw material, receipt of income like interest, commission, dividend, rent, etc. तो transaction कल हमने already लिखा है that these are nothing but an economic activity which is always expressed in terms of money. तो transaction क्या है? ऐसी economic activity जो आप पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और obviously doesn't matter it is cash or credit, पैसे के फॉर्म में तो इसको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So that way around transaction is there. उसी के साथ और कुछ यहाँ पे टर्म्स है, ये टेबल पहले लिख लीजिए कि परचेस सेल किस तरह से कर सकते हैं, और उसी के साथ हम ये पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे, इसको लिखना भूलेंगे नहीं, दैट इज क्रेडिट परचेसेस एंड क्रेडिट सेल्स. सो आई कैन राइट डाउन क्रेडिट परचेसेस give rights to a liability. Credit purchases एक liability को राइज करती है, that is known as creditor, जिसको आप creditor बुलाते हैं. Credit purchases give rise to a liability, that is creditor, और उसके बाद credit sell give rise to a asset. Credit cells give rise to an asset, और ये क्या रहेगा, that is debtor. क्रेडिट सेल्स करेंगे तो असेट बनेगा, क्रेडिट परचेसेस करेंगे तो लायबिलिटी बनेगी. क्या बनेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे चार्ट में, अब देख सकते हैं. ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्रेडिटर होता है और क्या डेटर होता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड नो डाउट देयर. एम आई राइट स्टूडेंट्स? सो क्रेडिट परचेसेस गिव राइज टू अ लायबिलिटी एंड क्रेडिट सेल्स गिव राइज टू अ असेट. आप क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्रेडिटर आएगा, क्रेडिट में बेचेंगे तो क्या आएगा, डेटर आएगा. सो दैट इज व्हाट दीज आर द टू थिंग्स हियर एज फार एज द पिक्चर इज बिफोर यू. पिक्चर आपके सामने बड़ा क्लियर है. आप बोल सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी बाकी है. अभी तो 5-6 टर्म्स हमने देखे हैं, अभी तो हम बस बेसिक टर्म्स देख रहे हैं. आगे तो जर्नी और मजेदार रहेगी वंस दीज ऑल टर्म्स आर वेरी क्लियर विथ यू. इतने टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अकाउंट्स आप बहुत एंजॉय करेंगे बियॉन्ड डाउट. चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स सी वाउचर. वाउचर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जैसे मैंने आपको बोला, आपने कैश में खरीदा तो कैश मेमो देता है आपको सेलर या दुकानदार, और आपने क्रेडिट में खरीदेगा तो वो देगा आपको क्रेडिट मेमो. वही है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर. जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप बनाते हैं खरीदने के या बेचने के एवज में, तो उसको हम वाउचर बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट अ कैश मेमो, एंड इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, दैट इज proof of purchase or proof of sell. When we make payment we get a receipt and so on. क्रेडिट में आप खरीदेंगे तो आपको वाउचर मिलेगा, जब आप पे करेंगे तो उसका कन्वर्ट होके क्या मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाउचर. वाउचर बहुत जरूरी होते हैं. आपने ऑडिट ये वर्ड सुना होगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है मतलब ऑडिटर बनना है. ऑडिटर बनना है मतलब आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है. ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, बिल
प्रूफ ऑफ परचेस एंड प्रूफ ऑफ सेल। मैंने अगर बोला कि मैंने 1 करोड़ का एफडी किया है, मैंने आपके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताया गवर्नमेंट को कि मैंने 1 करोड़ का एफडी किया है, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, रिसीट बताओ कि आपने 1 करोड़ का एफडी किया। तो ये रिसीट कौन चेक करेगा? ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक्सपेक्टेड है कि चेक करना चाहिए। तो ऑडिटर इज नथिंग बट द टास्क ऑफ authenticating the transaction which has been shown by the person or the business। जो कुछ आप बताएंगे पेमेंट रिसीट, उसको ऑथेंटिकेट करने का काम ऑडिटर करता है। तो ऑब्वियसली वाउचर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। जब भी आप ऑडिट की प्रोसेस में जाते हैं तो याद रखना वाउचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है। उसके आगे की टर्म तो वाउचर में क्या आएगा, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, ये सारा वाउचर में आएगा। बस बेसिक बोल रहा हूं बेटा, और ये टर्म्स इन डिटेल हम देखेंगे जब भी हम ये सारा 11th कॉमर्स की एक बुक आती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें और ज्यादा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे भी अपन ये देख सकते हैं, वहां पे देखेंगे और एक बार। तो अभी के लिए वाउचर याद रखो कि बिना वाउचर के कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, भले वो कैश हो या क्रेडिट हो। कैश मेमो और क्रेडिट मेमो वहां पे दोनों होनी चाहिए। इनवाइस जिसको हम बुलाते हैं, वाउचर जिसको बुलाते हैं, सो दैट इज व्हाट वाउचर। वाउचर यू कैन राइट इट डाउन। एंड लास्ट टर्म फॉर टुडे वी आर गोइंग टू सी, दैट इज सेल्स और टर्नओवर। आज के लिए आखिरी टर्म देखेंगे कि सेल्स और टर्नओवर क्या होता है। सेल्स इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 शर्ट बेचे, 1000 शर्ट्स आपने बेचे एज अ टेक्सटाइल शॉप ओनर। 1000 शर्ट आपने बेचे एंड 1 शर्ट इज कॉस्टिंग रुपीज 1500। तो आपका सेल कितना हुआ? 1000 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 1500, एज सिंपल एज दैट। ये 3 0, वो 2 0, 5 0 और 15, कितना हुआ? 15 लाख। ये आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, ये आपका क्या हुआ? सेल हुआ, रेवेन्यू। दिस इज योर ग्रॉस रेवेन्यू। अब इसमें से शर्ट बनाने को कितना लगा, वो लाने को कितना लगा, फिर आपने शोरूम का भाड़ा कितना दिया, सैलरी कितना दिया, ये काट कुट के आप निकालेंगे तो 15 लाख माइनस ध्यान में आया कि खर्चा आपका 10 लाख है सारा मिला के। फिर भी कितना बचा? 5 लाख। एंड 5 इज योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बहुत सारे रंग आएंगे, बट एज ऑफ नाउ यू कैन से दैट इट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट इज रुपीज 5 लाख। 15 lakh minus 10 lakh. So that way around, sales or turnover is nothing but the total amount which is received by selling the article or goods. वही दिया है। और सेल्स कैसा हो सकता है? या तो कैश पे या तो क्रेडिट पे। उसी तरह से परचेस कैसा हो सकता है? या तो कैश पे या तो क्रेडिट पे। एंड जैसे मैंने बोला, क्रेडिट परचेसेस गिव राइज टू अ लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर, एंड क्रेडिट सेल गिव राइज टू एन एसेट दैट इज डेटर। इसको भूलना मत। तो आज के लिए इतना काफी है। Selling on good will generate an asset called as debtor or bills receivable. Purchasing goods on credit will give rise to a liability that is creditor or bills payable. तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। I hope you must have enjoyed this journey for today of different basic concepts of accounting. हमने छोटे छोटे बेसिक concepts देखे ताकि आप उसको enjoy करें। आज हमने क्या देखा? Just crux of what we have seen today. Summary. We started with liability. Liabilities are nothing but the amount which are owed back to other parties for benefits received from them. For example, bank loan, creditors. उसका हमने creditors के 3 types देखे। creditors for material purchased on credit, creditors for loan borrowed, and creditors for expenses due but not paid. उसी के साथ हमने देखा fixed liability और long term liability, that is the liabilities which are liable to be paid more than 1 accounting year, and the liabilities which are liable to be paid within 1 accounting year are called as current liability, जैसे कि creditors, bills payable and bank overdraft, along with that a short term loan. तो ये हमने different types of liability देखे। उसी के साथ हमने ये देखा that credit purchases give rise to a liability called as creditor, and credit sales give rise to a asset that is called as debtor. और सेल और परचेस 2 तरीके से हो सकता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। चार्ट बना के यहाँ पे आपको बताता हूँ क्विकली। रेवेन्यू बताया मैंने, ट्रांजैक्शन बताया और आपको वाउचर भी बताया आखिरी में। तो दैट इज व्हाट द एंडिंग एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है आपका परचेसेस एंड
सेल्स कैन बी डन ऑन 2 बेसिस। ये 2 तरह से आप कर सकते हैं, पहला कैश और दूसरा ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, क्रेडिट। कैश परचेसेस एंड कैश सेल्स, क्रेडिट परचेसेस एंड क्रेडिट सेल्स। कैश में खरीदा या कैश में बेचा तो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा, पैसा मिलेगा या पैसा आप पे करेंगे और अकाउंट सेटल हो जाएगा। क्रेडिट में आप खरीदेंगे, क्रेडिट में आप बेचेंगे, then you will give rise to a asset and liability. Credit purchases give rise to a liability, that is creditor. Credit sales give rise to an asset, that is called as debtor. So that is again we are ending at. I hope you enjoyed this journey as far as these basic concepts of accounting are concerned. The rest of the concepts will continue tomorrow. Thank you for today and have a wonderful evening ahead. God bless you. Pratik, any doubt for today, my dear? बताइए प्रतीक, कोई डाउट है आज के लिए तो आप जरूर बता सकते हैं. You can write down into the chat box there. Thank you for your patient listening, my dear. कोई डाउट है प्रतीक for today? Any doubt प्रतीक? Okay, no. That is okay. प्रतीक, कल से आप आपका कैमरा ऑन करेंगे बेटा विदाउट फेल, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं. वैसे कैमरा ऑन करना कोई बुरी बात नहीं है, ऑन करके बताओ, because I haven't seen you yesterday as well. If you can turn on your camera right now, please. Harsh, any doubt? Okay. Harsh want to write down something for sales and okay. Yes, प्रतीक, कोई डाउट है बेटा? आपने कैमरा ऑफ कर दिया, शायद ऑन कर दिया था थोड़े टाइम के लिए. यस प्रतीक. प्रतीक, कोई डाउट है? कल से कैमरा ऑन रखना है विदाउट फेल. प्रतीक को गड़बड़ कितनी है, छोड़ भी दिया, 13 बता दिया और छोड़ दिया. ठीक है बेटा, कोई डाउट है?